वेलकम टू बोर्ड एग्ज़ाम चैम्पियंस। आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। Long answer question. 52. How did we find out from Mendel's experiment that symptoms are effective or ineffective? Different traits are independently hereditary. Answer. Gregor Mendel's experiments with pea plants are crucial to understanding heredity and inheritance patterns. Through his systematic studies, he was able to demonstrate how traits are passed down through generations and established principles that still form the basis of genetics today. Mendel's experiments provided insights into two important genetic concepts. Traits are dominant or recessive, effective or ineffective. Mendel began by selecting pure-breeding pea plants, which meant plants with consistent traits across generations, such as tall or short height. To study how these traits were inherited, Mendel crossed a tall plant, pure breeding for tallness, with the short plant, pure breeding for shortness. In the first generation, F1, resulting from this cross, all the plants were tall. The short trait did not appear in the F1 generation, which led Mendel to conclude that tallness was a dominant trait, or effective, because it appeared in all F1 plants, while shortness was recessive, or ineffective, as it was masked by the presence of the dominant trait. To further investigate, Mendel allowed the F1 tall plants to self-pollinate. In the second generation, F2, he observed that both tall and short plants appeared in a 3-to-1 ratio, 3/4 of the plants were tall, and 1/4 were short. This observation confirmed that the short trait had not disappeared but had been suppressed in the F1 generation due to the presence of the dominant tall trait. Through these experiments, Mendel concluded that traits could be either dominant, effective, or recessive, ineffective. Dominant traits appear even if only one copy of the gene is present, while recessive traits only appear when both copies of the gene are recessive. Different traits are independently hereditary. In another set of experiments, Mendel examined how two different traits were inherited together. He chose two traits in pea plants: seed color, yellow or green, and seed shape, round or wrinkled. He crossed plants with round yellow seeds, both dominant traits, with plants having green wrinkled seeds, both recessive traits. In the F1 generation, all the offspring produced round yellow seeds, showing that round shape and yellow color were dominant traits. Mendel then allowed the F1 plants to self-pollinate, and in the F2 generation, he observed 4 different combinations of traits: round yellow, round green, wrinkled yellow, and wrinkled green, appearing in a ratio of approximately 9:3 to 3:1. This variety in trait combinations showed that seed color and seed shape were inherited independently of each other. Mendel's findings led to the law of independent assortment, which states that genes for different traits are inherited independently of one another, provided they are located on different chromosomes or far apart on the same chromosome. This independent inheritance allows for more genetic variation, as it produces various combinations of traits. Conclusion. Mendel's experiments established two critical principles. Law of dominance: traits can be dominant, effective, or recessive, ineffective. Dominant traits mask the presence of recessive ones in the F1 generation but allow recessive traits to reappear in the F2 generation when both alleles are recessive. Law of independent assortment: different traits are inherited independently, resulting in varied combinations in offspring. These discoveries formed the basis for modern genetics, explaining how traits are passed from one generation to the next and how genetic diversity is achieved within species. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
Q.52 मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। उत्तर मेंडल ने अपने मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों से यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि कुछ लक्षण प्रभावी डोमिनेंट होते हैं और कुछ लक्षण अप्रभावी रिसेसिव होते हैं और विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इन निष्कर्षों को समझाने के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। मेंडल ने शुद्ध लंबाई वाले मटर के पौधे को शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस किया। इससे प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे निकले। इसने यह सिद्ध किया कि लंबाई का लक्षण प्रभावी है जबकि बौना लक्षण अप्रभावी है। इसके बाद मेंडल ने इन लंबे पौधों को आपस में क्रॉस किया। द्वितीय पीढ़ी F2 में 3:1 के अनुपात में पौधे निकले, जिसमें 3/4 पौधे लंबे और 1/4 बौने थे। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि बौना लक्षण छुपा हुआ था और यह केवल तभी प्रकट होता है जब दोनों माता पिता से यह अप्रभावी जीन प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं और कुछ अप्रभावी जो केवल प्रभावी लक्षण की अनुपस्थिति में प्रकट होते हैं। विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों के 2 लक्षणों जैसे बीज का रंग पीला या हरा और बीज का आकार गोल या झुर्रीदार का अध्ययन किया। उन्होंने गोल पीले बीज वाले पौधों को हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ क्रॉस किया। पहली पीढ़ी F1 में सभी पौधे गोल और पीले थे, जिससे यह ज्ञात हुआ कि गोल आकार और पीला रंग प्रभावी लक्षण हैं। जब F1 पौधों को आपस में क्रॉस किया गया तो दूसरी पीढ़ी F2 में 4 प्रकार के संयोजन प्राप्त हुए: गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। इनका अनुपात 9:3:1 था, जो यह दर्शाता है कि बीज का रंग और आकार एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इससे मेंडल ने स्वतंत्र वितरण का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट प्रतिपादित किया, जो यह कहता है कि विभिन्न लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संतानों में जाते हैं। निष्कर्ष: मेंडल के प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं और कुछ अप्रभावी जो केवल प्रभावी लक्षण की अनुपस्थिति में प्रकट होते हैं। विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, जिससे विभिन्न संयोजन संभव होते हैं। इन सिद्धांतों ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में एक नई दिशा दी और यह समझने में मदद की कि लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे स्थानांतरित होते हैं। तवील जवाब सवाल 52। मेंडल के तजर्बे से हमें कैसे पता चला कि ये अलामात मुअस्सर या गैर मुअस्सर हैं? वे मुख्तलिफ खसलतें आज़ादाना तौर पर मौरूसी हैं। जवाब: मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए तजर्बात से हमें विरासत के उसूलों को समझने में बहुत मदद मिली। इन तजर्बात ने ये वाज़ेह किया कि ये खुसूसियात अलामात मुअस्सर या गैर मुअस्सर होती हैं। मेंडल ने अपने तजर्बात में खालिस नस्ल यानी एक जैसे विरासती खुसूसियात वाले मटर के पौधों का इस्तेमाल किया। इन्होंने एक लंबे मटर के पौधे को एक बौने पौधे के साथ क्रॉस किया। इस तजर्बे में पहली नस्ल 1 में पैदा होने वाले तमाम पौधे लंबे थे, जिससे ये मालूम हुआ कि लंबेपन की खुसूसियत गालिब डोमिनेंट है।
बोनेपन की खुसूसियत जाहिर नहीं हुई, जिससे ये जाहिर हवा के ये दबने वाली रिसेसिव खुसूसियत है। इसके बाद मंडिल ने एक नस्ल के पौधों को आपस में क्रॉस किया, जिससे दूसरी नस्ल 2 हासिल हुई। इस नस्ल में 3/4 पौधे लंबे और 1/4 बोने निकले, यानी उनका तनासुब तकरीबन 3 से 1 था। इससे साबित हवा के दबने वाली खुसूसियत बोनापन भी जीनियाती मवाद में मौजूद थी, लेकिन गालिब खुसूसियत लंबापन के सामने छपी हुई थी। मंडिल ने नतीजा अख्ज़ किया कि खुसूसियात या तो गालिब मुअस्सर होती हैं या दबने वाली गैर मुअस्सर। जहां गालिब खुसूसियात मौजूद होती हैं वो नुमायां हो जाती हैं, जबकि दबने वाली खुसूसियात सिर्फ उसी सूरत में ज़ाहिर होती हैं जब दोनों वालिदैन से दबने वाली खुसूसियत वरासत में मिले। बी मुख्तलिफ खुसूसियात आज़ादाना तौर पर वरासत में मुंतकिल होती हैं। मंडिल ने एक और तजर्बे में 2 मुख्तलिफ खुसूसियात को बैक वक्त जांचने के लिए मटर के पौधे इस्तेमाल किए, जैसे बीज का रंग पीला या सब्ज और बीज की शक्ल गोल या झुर्रीदार। इन्होंने गोल पीले बीज वाले पौधों को सब्ज झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ क्रॉस किया। पहली नस्ल 1 में पैदा होने वाले तमाम बीज गोल और पीले थे, जिससे मालूम हुआ कि गोल शक्ल और पीला रंग गालिब खुसूसियात हैं। जब एक नस्ल के पौधों को दोबारा आपस में क्रॉस किया गया तो दूसरी नस्ल 2 में मुख्तलिफ मजमूए देखे गए। गोल पीले, गोल सब्ज, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार सब्ज। उनका तनासुब तकरीबन 9 से 3 से 1 था, जिससे जाहिर हवा के बीज का रंग और बीज की शक्ल की वरासत एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर होती है। इसका मतलब ये था कि बीज के पीले होने से इसके गोल या झुर्रीदार होने पर कोई असर नहीं पड़ता। इन तजरिबात से मंडिल ने आज़ादाना इम्तिजाज का कानून लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अख्ज़ किया, जो ये बयान करता है कि मुख्तलिफ खुसूसियात की वरासत एक दूसरे से आज़ाद होती है, खुसूसन जब ये खुसूसियात मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स पर या एक ही क्रोमोसोम के काफ़ी फासले पर हों। नतीजा मंडिल के तजरिबात ने वरासत के 2 बुनियादी उसूल वाज़े किए: गालिब और दबने वाली खुसूसियात गलबे का कानून और मुख्तलिफ खुसूसियात की आज़ाद वरासत आज़ादाना इम्तिजाज का कानून। इन नताइज ने जदीद जैनियत की बुनियाद रखी और ये समझने में मदद दी कि खुसूसियात नस्ल दर नस्ल कैसे मुंतकिल होती हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले हेल्पफुल वीडियो के लिए तैयार रहें। शुक्रिया बोर्ड एग्ज़ाम चैम्पियंस देखने के लिए, और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरह से करें।